کیا امریکہ کے مشرقی ساحل سے محض 90 میل کی دوری پر نصف صدی پرانی سرد جنگ ایک بار پھر بھڑکنے والی ہے؟ وینزویلا میں نکولس مادورو کے زوال نے آخر کیوبا کی معیشت کا گلا کیسے گھونٹ دیا؟ تیل کے خشک ہوتے ذخائر اور طویل اندھیروں میں ڈوبے کیوبا کے پاس اب بقا کا کیا راستہ بچا ہے؟ اور سب سے اہم یہ کہ کیا واشنگٹن کی نئی اور سخت ترین معاشی پابندیاں اس کمیونسٹ حکومت کو بالآخر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گی؟ کیسے ہیں دوستو؟ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے بالکل نیچے جنوب کی طرف سمندر میں محض 90 میل یا 145 کلومیٹر کے انتہائی کم فاصلے پر واقع یہ لمبا سا جزیرہ کیوبا ہے۔ یہ ملک خوبصورت کیریبین سی کے عین وسط میں ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ کیوبا کے بالکل مغرب میں میکسیکو موجود ہے، جبکہ اس کے جنوب میں جمیکا اور ہیٹی جیسے ممالک موجود ہیں۔ اس کا یہ حساس جغرافیائی محل وقوع ہی اس کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور سب سے بڑی کمزوری بھی، کیونکہ امریکہ کے بالکل بیک یارڈ میں واقع ہونا ہی وہ بنیادی وجہ ہے جس نے واشنگٹن کو ہمیشہ بے چین رکھا ہے۔ امریکہ اور کیوبا کے درمیان یہ تاریخی دشمنی محض چند سالوں کی کشیدگی یا کسی ایک امریکی صدر کی پالیسی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں 1959 کے اس مشہور زمانہ کیوبین انقلاب میں پیوست ہیں جس نے واشنگٹن کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ اس وقت فیدل کاسترو کی قیادت میں انقلابیوں نے امریکہ کی حمایت یافتہ ڈکٹیٹر فلگینسیو بتیستا کا تختہ الٹ دیا تھا۔ انقلاب سے پہلے کیوبا کی معیشت، زراعت اور بڑی صنعتوں پر امریکی کارپوریشنز کا گہرا کنٹرول تھا، لیکن کاسترو نے برسر اقتدار آتے ہی امریکی املاک کو قومی ملکیت میں لے لیا، یعنی نیشنلائز کر لیا، اور امریکی اثر و رسوخ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ یہ واشنگٹن کے وقار اور مفادات پر ایک ایسی کاری ضرب تھی جس نے دونوں ممالک کے درمیان ایک طویل معاشی اور سفارتی جنگ کی بنیاد رکھی۔ اس تنازع کی اصل بنیاد در حقیقت نظریاتی اور جغرافیائی سیاسی یعنی جیو پولیٹیکل ہے۔ امریکہ جو اپنی مشہور منرو ڈاکٹرین کے تحت مغربی نصف کرہ میں کسی بھی بیرونی طاقت یا مخالف نظریے کو برداشت نہیں کرتا، فلوریڈا کے ساحل سے محض 90 میل کے فاصلے پر ایک کمیونسٹ ریاست کے قیام کو اپنی قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ سمجھتا ہے۔ جب کیوبا نے سرد جنگ کے عروج پر سوویت یونین کے ساتھ ہاتھ ملایا اور 1962 کے کیوبین میزائل بحران نے دنیا بھر کو ایٹمی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا، تو امریکہ نے کیوبا پر تاریخ کی سخت ترین اور نہ ختم ہونے والی اقتصادی پابندیاں عائد کر دی، جس کا واحد مقصد اس سوشلسٹ حکومت کا معاشی گلا گھونٹ کر اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا تھا۔ گزشتہ 6 دہائیوں سے یہ سرد جنگ کبھی معاشی پابندیوں، کبھی بغاوت کی خفیہ امریکی کوششوں اور کبھی سفارتی تنہائی کی صورت میں جاری رہی ہے۔ یہ تو تھا اس کٹر دشمنی کا وہ تاریخی پس منظر جس نے کیوبا کو اشروں تک دنیا سے کاٹے رکھا، لیکن اب اچانک ایسا کیا طوفان آ گیا ہے کہ 2026 میں کیوبا کی معیشت آخری سانسیں لے رہی ہے اور پورا ملک ایک سنگین انسانی المیے کے دہانے پر کھڑا ہے۔ آخر واشنگٹن کے ہاتھ ایسا کون سا سنہری اور تباہ کن موقع لگ گیا ہے جس نے اسے ایک بار پھر کیوبا کے مکمل گھراؤ کے لیے اپنا جال بچھانے پر مجبور کر دیا ہے؟ موجودہ بحران کی اصل جڑ اور اسے بھڑکانے والا سب سے بڑا عنصر دراصل وینزویلا میں نکولس مادورو کی حکومت کا زوال ہے، جسے امریکہ کیریبین خطے میں اپنے سمندری محاصرے کی ایک شاندار اسٹریٹجک فتح کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ وینزویلا کیوبا کے لیے زندگی کی شارک تھا، جو 2025 تک 11 ملین آبادی پر مشتمل اس جزیرے یعنی کیوبا کو یومیہ تقریباً 35,000 بیرل تیل فراہم کر رہا تھا۔ اس تیل کی قیمت کیوبا اپنے ڈاکٹرز، تکنیکی ماہرین اور فوجی عملے کی خدمات کے ذریعے ادا کر رہا تھا، لیکن 2026 کے آغاز میں حالات یکسر بدل گئے۔ 9 جنوری کو میکسیکو سے محض 84,900 بیرل تیل ملا اور اس کے بعد سے سپلائی مکمل طور پر منقطع ہے۔ سال کے آغاز پر ہوانا کے پاس تیل کے ذخائر صرف 4,60,000 بیرل تک محدود رہ گئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کیوبا کی معیشت جو پہلے ہی سیاحت کے زوال کی وجہ سے ہچکولے کھا رہی تھی، اب آخری سانسیں لے رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ نے کئی بار وارننگ جاری کی تھی کہ فروری کے آخر تک ملک کے تیل کے ذخائر مکمل طور پر خشک ہو سکتے ہیں، جس سے ایک سنگین انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ آج کیوبا کے عوام پیٹرول پمپس پر طویل قطاروں، بجلی کی مسلسل بندش، مفلوج ٹرانسپورٹ اور زر مبادلہ کی شدید قلت کے عذاب سے گزر رہے ہیں۔
ये सूरत हाल क्यूबा के सदर मिगुएल डियाज कैनल के लिए सबसे कड़ा इम्तिहान है, जिनकी टेक्नोक्रेटिक तर्ज हुक्मरानी और फौजी ढांचे पर इन्हिसार की वजह से खुद उनकी अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी उन पर तनकीद की जा रही है। लेकिन यहाँ एक खौफनाक सवाल ये पैदा होता है कि वाशिंगटन इस नाजुक सूरत हाल का फायदा उठाने के लिए पसे पर्दा ऐसा कौन सा नया जाल बुन रहा है जिसने निस्फ सदी पुरानी सर्द जंग की यादों को दोबारा जिंदा कर दिया है। हालात वाज़े तौर पर अमेरिका के हक में हैं और डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया उसे क्यूबा में एक फैसला कुन सियासी तब्दीली मुसल्लत करने का तारीखी मौका तस्वर कर रही है। 29 जनवरी 2026 को अमरीकी सदर ने एग्जीक्यूटिव आर्डर 14,380 पर दस्तखत किए, जिसके तहत हवाना की दुश्मनाना पॉलिसियों को अमेरिका की सलामती के लिए एक गैर मामूली खतरा करार देकर कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इस हुक्मनामे ने एक नए मुआशी गिराव की बुनियाद रखी। नए टैक्सेस का नफाज, क्यूबा को तेल और या तवानाई फराहम करने वाली गैर मुल्की कंपनियों पर सख्त पाबंदियां और कैरिबियन में काम करने वाले क्यूबियन इदारों के अकाउंट्स को मुंजमद करना। मजीद बरा रूसी या चीनी असर रसूख के तहत समझी जाने वाली बंदरगाहों और बहरी टर्मिनल्स में सरमायाकारी पर भी ममानत आयद कर दी गई है। अमरीकी हिकमत अमली बिल्कुल शफाफ है। क्यूबा को तवानाई और आमदनी के हर जरिए से काट दिया जाए ताकि हुकूमत को सियासी मुराद देने पर मजबूर किया जाए और उसे तबाही की खाई में धकेल दिया जाए। ये जारियत 1959 में फैदल कास्त्रो के इनकलाब के बाद से जारी इस तारीखी अमरीकी बयानिए के तसलसल है, जो क्यूबा को मगरबी निस्फ कुरा के कल्ब में एक नजरियाती बेजाब्तगी समझता है। अगरचे 2014 में बराक ओबामा ने सफारत खानों की बहाली, तिजारती परवाजों और खानदानी तबादलों के जरिए तल्लुकात मामूल पर लाने की बुनियाद रखी थी, लेकिन मौजूदा अमरीकी इंतजामिया ने बाइडन दौर की नरमियों को भी पलट कर रख दिया। इस नई सख्ती में वजीर खारजा मार्को रूबियो, जो फ्लोरिडा से ताल्लुक रखने वाले क्यूबन अमरीकी सेनेटर हैं, का किरदार कलीदी है। उनके लिए ये सख्ती सिर्फ सफारतकारी या नजरियाती इख्तलाफ नहीं, बल्कि एक जाती मिशन और फ्लोरिडा के जलावतन क्यूबन वोटर को खुश करने का इंतखाबी हरबा है। उनका दावा है कि कैरिबियन में सोशलिज्म का खात्मा अमेरिका की मुकम्मल जुग्राफियाई और सियासी फतह होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेनेजुएला के साथ किया गया। अगरचे ट्रंप ने 1 फरवरी को इंसानी इमदाद और जजीरे पर जाकर वोट डालने के ख्वाहिशमंद जलावतनों को कानूनी हैसियत देने के हवाले से मुमकिन बातचीत का इशारा दिया था, लेकिन अमेरिका बैक वक्त जबर और मुस्तकबिल में ताल्लुकात मामूल पर लाने के वादों का मिला जुला खेल खेल रहा है। एक तरफ अमेरिका का ये सफाकाना मुआशी गिराव और दूसरी तरफ पाबंदियों का तूफान। लेकिन क्या हवाना की मौजूदा क़ियादत, जिसका तल्लुक कास्त्रो खानदान से नहीं है, इस अमरीकी यलगार के सामने वाकई हथियार डाल देगी या फिर जजीरे की असल ताकत कोई और ही खेल खेल रही है? क्यूबियन सदर मिगुएल डियाज कैनल की शख्सियत इस बहरान को मुकम्मल तसादुम या वेनेजुएला जैसी बगावत से बचाने में अहम साबित हो सकती है। वो कोई कट्टर नजरियाती कास्ट्राइट नहीं, बल्कि राउल कास्त्रो के दौर की मुआशी लिबरलाइजेशन को आगे बढ़ाने वाले एक मोहताज टेक्नोक्रेट हैं। फरवरी में उन्होंने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश का इजहार किया और ईंधन की किल्लत से निमटने के लिए एक हंगामी मंसूबे का ऐलान भी किया। इसके फौरन बाद ही उनके लहजे में मजीद नरमी आई जब उन्होंने वाज़े किया कि क्यूबा बगैर किसी पेशगी शर्त के तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए तैयार है। क्यूबा की वजारत खारजा भी मुसलसल राब्ते के चैनल्स खोल रही है और नायब वजीर खारजा कार्लोस फर्नांडीज ने नाम लिए बगैर इन मोहतात राब्तों की तस्दीक भी की है। दरअसल क्यूबा जानता है कि उसके पास बरह रास्त महाजराई जीतने का कोई इम्कान नहीं है, इसलिए वो सफारती मुज़ाकरात की आड़ में अमरीकी मुदाखलत को रोकने और वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डियाज कैनल न्यू कास्ट्रिज्म का महज एक चेहरा है। जजीरे की असल ताकत और मईशत की बागडोर आज भी क्यूबा की मुसल्लह अफवाज के हाथ में है। फौज 50,000 जवानों पर मुश्तमिल है, जिन्हें रिजर्व, मलेशिया और नीम फौजी दस्तों की हिमायत हासिल है, जो लाजमी सर्विस की बदौलत नजरियाती तौर पर 10 लाख अफराद की बड़ी फौज खड़ी कर सकते हैं। अगरचे इनका जंगी साजो सामान अब पुराना और मुकम्मल तौर पर मतरूक हो चुका है और वो अमरीका के लिए कोई गैर मामूली खतरा नहीं है, लेकिन फौज का असल असर और रसूख गायसा के जरिए है। गायसा एक मुसल्लह अफवाज के कारोबारी इंतजाम का एक ग्रुप है। सियाहत से
से लेकर लॉजिस्टिक्स, दरामदात और इंफ्रास्ट्रक्चर तक मुल्क के GDP का 40% इनके कंट्रोल में है और इनकी कुल आमदनी क्यूबा की रियासती बजट के सालाना आमदनी से 32 गुना ज्यादा है। अगरचे क्यूबा की फौज का जंगी साजो सामान अब पुराना और मतरूक हो चुका है, लेकिन हुकूमत अपनी बका के लिए आज भी इन्हीं पुराने इनकलाबी जज्बात का सहारा ले रही है। मुल्क में बढ़ती हुई मायूसी और अमरीकी दबाव को काउंटर करने के लिए सदर डियाज कैनल ने हाल ही में फौजी मशकों का दौरा किया। वहां उन्होंने बख्तर बंद यूनिटों के सामने खड़े होकर खून के आखिरी कतरे तक लड़ने का जो नारा लगाया, वो बज़ाहिर अमरीका को एक वार्निंग थी, लेकिन हकीकत में ये महज अपनी अवाम और फौज का मुराल गिरने से बचाने के लिए एक अंदरूनी सियासी पैगाम था। क्यूबा अपनी बका की ये आसाब शिकन जंग बज़ाहिर तने तनहा लड़ रहा है, लेकिन इस नए आलमी बहरान में आखिर वो सुपर पावर कहाँ गायब हैं जो माजी में हमेशा हवाना की पुष्टपनाही किया करती थी? क्या रूस या चीन खतरा मोल लेकर अमेरिका का ये समंदरी मुहासरा तोड़ने की जसारत करेंगे? जब हम आलमी रद्द-ए-अमल पर नजर डालते हैं तो मंजरनामा क्यूबा के लिए काफी मायूस कुन दिखाई देता है। रूस ने अमेरिकी फैसले की फौरी मजम्मत की और मरमांसिक और कलिनिनग्राड की बंदरगाहों के जरिए अब समंदरी रास्ते से ईंधन भेजने का वादा किया, लेकिन जमीनी हकायक ये है कि यूक्रेन की जंग और बजट की मजबूरियों में घिरा मास्को इस पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिकी और यूरोपीय बहरी मुहासरे को तोड़कर मुख्तसर मुद्दत में अपने टैंकर्स हवाना तक बाहिफाजत पहुंचा सके। दूसरी जानिब चीन, जो 2015 से क्यूबा का सबसे बड़ा कर्ज दहिंदा है, इस सूरत हाल को अपना मालियाती और तकनीकी असर रसूख बढ़ाने के मौका के तौर पर तो देखता है, लेकिन बीजिंग ट्रंप की आमद के बाद से मगरबी निस्फ कुरा में वाशिंगटन के साथ किसी भी बरह रास्त तसादुम से गुरेज कर रहा है। वो जजीरे पर कदम जमाने के लिए सिर्फ इंसानी इमदाद जैसे मुतबादिल रास्ते तलाश करेगा। वियतनाम, जो क्यूबा का एक तारीखी शराकतदार है, उसने गहरी तशवीश जरूर जाहिर की है, लेकिन वो भी मशरक में अपने मफादात और इलाकाई हदूद में कैद है। मेक्सिको की हालत ये है कि उसने 800 टन इंसानी इमदाद तो भेजी है, लेकिन वो नजरियाती यकजहती और मुआशी एहतियात के दरमियान हिचकिचा रहा है और अमरीकी पाबंदियों के खौफ से जनवरी के आखिर में ही उसने तेल की बरामदात मुअत्तल कर दी थी। आखिर में वेटिकन है जिसने पोप जॉन पॉल II और पोप फ्रांसिस अव्वल की रिवायत को बरकरार रखते हुए खलूस नियत से बातचीत की अपील की है, लेकिन इन सब बातों का लब्बे लुबाब यही है कि आज क्यूबा आलमी महाज पर बिल्कुल तने तनहा खड़ा है। क्यूबा से हटकर देखें तो ये कशीदगियां लातीनी अमेरिका की तारीखी दरारों को दोबारा जिंदा कर रही हैं। खित्ते की बाएं बाजू की हुकूमतें हवाना के साथ नजरियाती हमदर्दी रखने के बावजूद वाशिंगटन के साथ अपने मुआशी तल्लुकात बचाने की फिक्र में हैं, ताकि इस हिट लिस्ट में अगला निशाना वो खुद न बन जाए। चारों तरफ से कड़ी पाबंदियों में जकड़े हुए क्यूबा का अंजाम बज़ाहिर दीवार पर लिखा नजर आ रहा है, लेकिन गौर तलब बात यह है कि वाशिंगटन आखिर इस घिराव को किस हद तक ले जाना चाहता है। क्या अमेरिका वाकई क्यूबा की मुकम्मल तबाही चाहता है, या इस बज़ाहिर अंधे गुस्से के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का कोई इंतहाई बारीक और शातिराना सियासी हिसाब किताब छुपा है? अमरीकी नुक्ता नज़र को बारीक बीनी से समझना बहुत ज़रूरी है। क्यूबा वाशिंगटन के लिए एक स्ट्रेटेजिक इम्तिहान ज़रूर है, जिसका मकसद मुआशी और सफारती दबाव से जजीरे की पॉलिसी को मोड़ना है, लेकिन अमरीका क्यूबा की मुकम्मल तबाही से मोहतात भी है। इसकी वजह यह है कि मुकम्मल तबाही का सीधा मतलब फ्लोरिडा की जानिब लाखों क्यूबियन बाशिंदों के बड़े पैमाने पर हिजरत होगा और नवंबर 2026 में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात यानी मिड टर्म इलेक्शन के करीब कोई भी अमरीकी इंतजामिया पनाह गुज़ीनों का ये संगीन इंतखाबी खतरा मोल नहीं ले सकती। मजीद बरआं, अगरचे क्यूबा में निकल और कोबाल्ट के स्ट्रेटेजिक ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन वो फिलहाल अमरीका की तरजीह नहीं है। गालिब मफाद सियासी है जो तजदीद शुदा मिनरो डॉक्ट्रिन के गिर्द घूमता है। इसीलिए ट्रंप बरह रास्त फौजी मुदाखलत से बचते हुए सख्त पाबंदियों और मुज़ाकरात की पेशकश को यकजा लेकर चल रहे हैं। इन तमाम हकायक की रोशनी में मुस्तकबिल के इम्कानात के लिए 3 अहम मफरूज़े या मंजरनामे मुमकिना तौर पर पेश आ सकते हैं, जिनको हम बिलतरतीब समझने की कोशिश करते हैं। पहला मंजरनामा कंट्रोल्ड तसादुम। ये आज की सूरत हाल में सबसे ज्यादा करीनक्यास ऑप्शन है।
दोनों फरीक एक ऐसा बयानिया बरकरार रखेंगे ताकि अवाम के सामने झुकते हुए न नजर आए और कंपनियों के खिलाफ बरह रास्त बहरी कार्रवाई से गुरेज किया जाए। कशीदगी को काबू में रखने के लिए सालसी के जरिए गैर रस्मी बातचीत चलती रहेगी। वाशिंगटन मुआशी दबाव बरकरार रखेगा, लेकिन हुकूमत को डूबने से बचाने और हिजरत को रोकने के लिए इंसानी हमदर्दी का एक रास्ता भी फराहम करता रहेगा। दूसरा मंजरनामा पॉलिसी में बरह रास्त तब्दीली। दरमियानी मुद्दत में गालबन यही अमेरिका का असल हदफ है। अगर तवानाई का बहरान हद से ज्यादा बढ़ गया तो क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी का एक हिस्सा या खुद सदर कोई हकीकत पसंदाना समझौता तलाश कर सकते हैं। वो मईशत को अमरीकी सरमायाकारी के लिए मजीद खोल सकते हैं, जला वतनों से मुज़ाकरात शुरू कर सकते हैं और अंदरूनी इस्लाहात कर सकते हैं। बदले में अमेरिका बगैर किसी बड़ी अफरा तफरी के अंदरूनी लिबरलाइजेशन की उम्मीद में अबूरी शख्सियात की हिमायत करेगा। तीसरा मंजरनामा कशीदगी में इंतहाई इजाफा। जोग्राफियाई और सियासी सियाको सबाक के लिहाज से ये सबसे कम मुमकिन ऑप्शन है। इस मंजरनामे में वाशिंगटन तेल की तमाम दरामदात को मुकम्मल तौर पर रोक देगा और फ्लोरिडा आबनाए में अमरीकी गश्त को मुकम्मल फौजी रंग दे देगा। जवाब में क्यूबा खुली जारियत की मजम्मत करते हुए रूस और चीन के साथ अपना फौजी ताउन बढ़ा देगा। ये एक खतरनाक कैरिबियन बहरान होगा जो 1962 की याद ताज़ा कर देगा, लेकिन इसका इम्कान ना होने के बराबर है क्योंकि रूस और चीन दोनों अपने अपने खितों में मशगूल हैं और अमेरिका की तवज्जो इस वक्त ईरान की जानिब ज्यादा मरकूज है। हतमी और सबसे मुस्तनद तजजिया यही है कि तसादुम का ये नया मरहला रिवायती फौजी मैदान में नहीं बल्कि मालियाती और सियासी सर्कट्स, समंदरी रास्तों और मालूमाती दायरों में खेला जाएगा। क्यूबा के साथ तिजारत करने वाले किसी भी फरीक को कमजोर करने के लिए अमेरिका के पास ताकतवर कानूनी हथियार और अमेरिकी बहरिया की भरपूर कुव्वत मौजूद है। दूसरी जानिब हवाना अपनी बका के लिए अवाम की रिवायती लचक और जनूबी ममालिक यानी ग्लोबल साउथ के साथ सफारतकारी पर इन्हिसार कर रहा है। इनके वसाइल महदूद हैं, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप की सियासी कमजोरी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या अमेरिका अपनी नई और सख्त तरीन माशी पाबंदियों के जरिए क्यूबा की हुकूमत को गिराने में वाकई कामयाब हो जाएगा, या फिर क्यूबा माजी की तरह इस बार भी वाशिंगटन का ये घिराव तोड़ने में कामयाब रहेगा? अपनी कीमती राय और तजजिया नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमें आपके जवाबात का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको आज की ये वीडियो और हमारा जोग्राफियाई और सियासी तजजिया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और हाँ, आलमी सियासत, मईशत और दुनिया के बदलते हुए हालात पर ऐसी ही गहरी और हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोस देखने के लिए जी व्यू को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।